Welcome back in class of Simplifying Mathematics. Today we are going to take some important numericals on squares and square roots. So now starting with the first numerical. Show that 3600 is a perfect square. Also find the number whose square is 3600. कि आपने show करना है कि ये जो given number है, this is a perfect square. So what is the method? So the method to check कि whether a number is a perfect square or not, you should go for the prime factorization of the given number. तो कहाँ से शुरू करना है? तो यू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन number. Now what is prime factorization? So this is writing the number as a product of its prime factors. अब इसके prime factors निकाल लेते हैं हम. तो what is the method? So you keep on dividing starting from the smallest prime number. So these are the prime factors of 3600. तो prime factorization of 3600 क्या हो गया? So 2 into 2. Now after finding the prime factors, what you have to do? You have to group all these factors in pairs. कि आपने इनको group करना है in pairs में so that both the factors in pairs should be equal. तो कितने pair बन गए? So this is one pair, this is two, this is third, and this is fourth. Now if after grouping, if no factor is left over after grouping, कि अगर grouping करने के बाद कोई भी factor left over नहीं है, so then we can say that given number is a perfect square. अब देखो कोई भी factor left over नहीं है, सभी factors के क्या बन गए हैं? Groups बन गए हैं. So therefore we can write कि 3600 is a perfect square. Now next is you have to find the number whose square is 3600. अब आपने वो number ढूंढना है जिसका square क्या हो 3600 हो. तो what is the method? तो you take one factor from each pair. तो this is 1, 2, 3 and 4. तो हर एक पेयर में से आपने एक एक फैक्टर ले लिया. You multiply all those factors. तो जो रिजल्ट होगा 60. So this is the number whose square is what? 3600. So we can write here that 3600 is what? This is the square of 60. Now next question. How many natural numbers lie between the squares of 25 and 26? So you have to find कि कितने natural numbers हैं between the squares of these two numbers. अब आप देखो 25 and 26. So these are consecutive numbers, right? So there is a property of square numbers कि between the squares of any two consecutive numbers. So how many numbers, natural numbers are there? So there are 2n natural numbers between squares of two consecutive numbers कि किसी भी दो consecutive squares के बीच so there will be 2n natural numbers. Now अगर n क्या है 25 तो इसका consecutive क्या हुआ 26. तो number of natural numbers क्या हो गए? Number of natural numbers between 25 square and 26 square. So that is equal to 2n, that is 2 into 25, that is 50. So there are 50 natural numbers between the squares of 25 and 26. The next question, to find the square of 96 using column method. So you have to find the square of 96. Now what is there in column method? So you know that column method uses some identity to find the square of any two-digit number. So what is that identity? So that is a plus b square plus 2ab plus b square. Now the first term is the first column, the second term is the second column, and third term is the third column.
So we'll draw 3 columns here. So this is first, this is second, and this is third. So what will be the value here? This will be a square, 2ab and b square. Now what is the value of a and b? Now the number is what? 96. तो जो a होता है this is the 10th digit number, that is 9, और जो b है this is unit digit number. Now you put the values. A square is what? This is 9 into 9, this is 81. Now 2ab, 2 into 9, so this comes out to be 108. Then b square is what? After writing the values of all these terms, you have to start from the last column. अब last column में कितनी value है? 36. तो you take the unit digit of 36, उसको underline कर लो, और जो लेफ़्ट ओवर डिजिट है डेट इज़ 3, उसको इसके प्रीवियस कॉलम में ऐड कर लो. तो दिस 3 दिस शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द सेकेंड कॉलम. तो इसमें हमने क्या करेंगे, इसके में हम ऐड करेंगे. जब ऐड किया सो दिस कम्स आउट टू बी 111. तो देन अगेन द सेम मेथड, यू टेक द यूनिट्स डिजिट ऑफ दिस वैल्यू, उसको अंडरलाइन कर लो, और जो बाकी लेफ़्ट ओवर है दैट इज़ 11, दिस शुड बी एडिड टू द प्रीवियस कॉलम. अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? +11. तो ये क्या आ गया? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 92. अब जो फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है वो हम सारी की सारी कंसिडर करेंगे. तो इफ़ यू राइट डाउन ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, द अंडरलाइंड वैल्यूज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो क्या हो गया? 9216 को क्या है? दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 137 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड. कि आपने इसका स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग द डायगोनल मेथड. नाउ व्हाट इज देयर इन डायगोनल मेथड? तो फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय डायगोनल मेथड यू हैव टू ड्रॉ मैट्रिक्स. नाउ मैट्रिक्स कौन सा होगा? द मैट्रिक्स विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर. अब इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट्स. सो देयरफॉर विल ड्रॉ मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3, that is number of rows will be equal to number of columns, that is it will be a square matrix. तो अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं. अब इस मैट्रिक्स में क्या होगा? देयर विल बी 3 columns and there will be 3 rows. Now after drawing the matrix, you write the given number in every row and in every कॉलम. हर रो और हर कॉलम के आगे वो नंबर लिख लीजिए. तो ये क्या हो गया? 137. दिस इज़ ऑल्सो 137. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ यू मेक द डायगोनल ऑफ दिस सब मैट्रिक्स. एंड ये जितने भी सब मैट्रिक्स हैं इनके डायगोनल्स ड्रॉ कर लो. नाउ दिस इज़ डायगोनल, ये भी डायगोनल, दिस इज़ अगेन. So clear? Diagonals ड्रॉ कर लिए. Now next is you have to write the values in these sub matrix. अब इन सभी सब मैट्रिक्स में आपने वैल्यूज़ लिखनी है. That is multiply the first row with the first column, first row with the second column and so on till the last row with the last column. अगर आप ध्यान से देखो, now 1 into 1 is what? 1. The unit digit of that product should be written below the diagonal of the sub matrix or 10th digit on the upper side of the diagonal. Now 1 into 1 is 1, so this is unit digit, this is 10th digit. Similarly 1 into 3 is what? 1 into 7. So clear? Now complete all the values. 3 into 1, 3 into 3, now 7 3s are what? 21. 1 into 7, then 7 3s are 21, then 7 7s are 49. Now after writing all the values you extend the lines of the diagonals in both the directions. अब इनको लाइन को आप एक्सटेंड कर दो. Clear? Now after extending the lines
you mark these spaces between the diagonal. This is space 1, space 2, space 3, space 4, space 5, and this is space 6. Now starting from the space 1, तो look at the various values in space 1. तो इसमें कितनी वैल्यू है? there is only one value 9, तो वो यहाँ पे लिख लो. ना जो भी वैल्यू है उसके यूनिट डिजिट को आप अंडरलाइन कर लो. तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्पेस. अब इस स्पेस में कितनी वैल्यूज है? 1, 4 एंड 1. तो यू ऐड ऑल दिस वैल्यूज. तो क्या हुआ? 1 प्लस 4 प्लस 1, तो वो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 6. नाउ अगेन द सेम मेथड कि अंडरलाइन द यूनिट डिजिट ऑफ द वैल्यू. तो वो कितना है? 6. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्पेस. Now these are having 7, 2, 9, 2 and 7. You add all the values. So that is 7 plus 2 plus 9 plus 2 plus 7. तो क्या values आ गई? 11 and 20. So this comes out to be 27. Now underline the unit digit. Now अब ये जो left over digit है, this is to be carry forward towards the नेक्स्ट स्पेस. तो इसको हमने अगली स्पेस की वैल्यू में उसको ऐड करना है. अब नेक्स्ट स्पेस की वैल्यूज़ क्या है? सो दैट इज़ 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0. तो क्या रिज़ल्ट आ गया? सो दिस कम्स आउट टू बी 6. अब इसमें ये आपने वैल्यू ऐड करनी है. तो दैट इज़ 6 प्लस 2, सो दिस इज़ 8. नाउ अगेन अंडरलाइन द यूनिट डिजिट. इसको हमने क्या कर लिया? हमने अंडरलाइन कर लिया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्पेस. अब इस स्पेस में वैल्यूज़ क्या है? 0, 1, 0. इसको ऐड कर लो. तो क्या आ गया? 1. तो यू अंडरलाइन दैट यूनिट डिजिट. नाउ नेक्स्ट स्पेस इज, इसमें एक ही वैल्यू है तो वो कितनी है? 0. तो वो हमने क्या कर ली? अंडरलाइन कर ली. तो आफ्टर अंडरलाइंग ऑल द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल दिस स्पेसिस यू हैव टू कंबाइन दिस अंडरलाइंड डिजिट्स. तो वो कैसे कंबाइन करना है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो पहला डिजिट क्या है? 0, देन 1, देन 8, देन 7, 6, 9. ठीक है. तो इग्नोरिंग दिस 0 बिकॉज 0 इज हैविंग नो सेंस इफ इट इज इन फ्रंट ऑफ द नंबर. तो व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 1, 8, 7, 6, 9. तो दिस इज व्हाट? So this is the square of the given number, that is 137 square. The next question, कि find the smallest number by which 1800 must be multiplied so that the product is the perfect square. कि आपने वो नंबर ढूंढना है by which this number should be multiplied, ताकि वो जो प्रोडक्ट आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, so that will be a perfect square. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिस पे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर. तो आपने जो भी गिवन नंबर है तो उसके क्या लिख लेने हैं? आपने प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1800. Now what is prime factorization? So this is writing the number as a product of its prime factors. अब इसके prime factors निकाल लेते हैं. So 2, 900, then 450, 225, तो these are the prime factors. तो क्या आ गया हमारे पास? सो दिस इज 2 into 2 into 2, right? Now next, after finding the prime factors, you have to pair the numbers in groups. कि इन सभी फैक्टर्स को आपने ग्रुपिंग करनी है इन पेयर्स so that all the factors in pairs should be equal. Now this is the first pair which is having equal factors. अब इसका कोई और पेयर नहीं है, इसको छोड़ दो. सो दिस इज़ अनदर पेयर, दिस इज़ अनदर पेयर. तो आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अगर सारे फैक्टर्स की ग्रुपिंग हो जाए या सारे फैक्टर्स के पेयर्स बन जाए, ओनली देन वी कैन कॉल दैट नंबर एज ए परफेक्ट स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो ग्रुपिंग नहीं हो रही है सारे फैक्टर्स की, तो इट मीन्स ये तो क्लियर है, हमें गिवन भी है कि दिस 1800 दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर.
नाउ इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1800 को हम किससे मल्टीप्लाई करें सो डैट वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नाउ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस फैक्टर 2, तो तभी ये पेयर बनेगा ना। ओनली देन वी कैन से दैट द गिवन नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो व्हाट इज दैट नंबर बाय विच दिस 1800 शुड बी मल्टीप्लाइड, सो 1800 should be multiplied by 2 to make it perfect square। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ताकि ये वाला जो लेफ्ट ओवर पेयर है ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो वही हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो नंबर हमारा क्या बन गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 3600। अब आगे क्या पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर, कि वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है 3600। तो व्हाट इज दैट नंबर, तो यहाँ पे आप लिख लो कि नंबर हुज स्क्वायर इज 3600। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग दैट नंबर, यू टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप। अब यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया बिकॉज हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसको। तो 2 देन 3 एंड देन 5। तो जब इसको लिखोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 60। तो therefore this is the number 60 whose square is 3600. Now next question is कि find the least square number which is exactly divisible by each of the given numbers, that is 6, 9, 15 and 20, कि वो कौन सा छोटा स्क्वायर नंबर है जो इन सभी नंबर्स के साथ exactly divisible है। तो how you will proceed? Now if you look at the concept of HCF and LCM, तो उसमें क्या होता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर्स। तो क्या करोगे आप, यू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो वो जो एलसीएम आएगा सो दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर्स, दैट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर्स। तो स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन, तो यू फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20. So how to find the LCM? So starting from the 2, right? So LCM of these numbers will be, so 2 into 3 into 5 into 3 into 2, this comes out to be 180. तो now this is the least number, ये जो 180 है ये सबसे छोटा नंबर है which is exactly divisible by all the given numbers. अब उसने क्या पूछा है, क्या निकालना है, तो we have to find the square number. अब हम चेक करेंगे क्या ये लीस्ट नंबर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो देन 180 will be our answer. अगर ये perfect square नहीं है we will make it a perfect square. तो how to check कि whether a given number is a perfect square or not, तो you find the prime factors of the given number. Now finding the prime factors of this 180, that is you go for the prime factorization of the number 180. तो क्या होंगे factors इसके, so 2, 3 into 3 into 5, ठीक है। तो if you multiply 2 to 4, 12, 36 and 5, 180. So this is the prime factorization of the given number. अब इसको चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू ग्रुप दिस फैक्टर्स इनटू पेयर्स सो दैट हर पेयर में ऑल द फैक्टर्स विल बी इक्वल। नाउ दिस इज ग्रुप 1, इसमें दोनों इक्वल फैक्टर्स आ गए। दिस इज सेकेंड ग्रुप, इसमें भी दोनों फैक्टर्स इक्वल आ गए। अब इसमें देखो द ग्रुप इज़ नॉट फॉर्मिंग, अब यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा बिकॉज ये हमारे क्या पास है, वो ये लेफ्ट विद ओनली वन फैक्टर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ द फैक्टर इज़ लेफ्ट ओवर, अगर फैक्टर बच जाए हमारे पास तो वी कैन से कि जो 180 है दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि ये जो 180 है दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। अब इसे परफेक्ट स्केयर कैसे बनाओगे, अब इसमें क्या मिसिंग है, 5। तो अगर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को तो वो क्या बन जाएगा, सो दैट विल बी ए परफेक्ट स्केयर, राइट। तो परफेक्ट स्केयर क्या बन गया, तो 180 into 5, so this comes out to be what, 900। अब ये 900 क्या है, दिस इज़ अ परफेक्ट स्केयर और दिस इज़ अ स्केयर नंबर। तो वही इसने पूछा है कि फाइंड द लीस्ट स्केयर नंबर। तो जो लीस्ट स्केयर नंबर है वो कितना है, दैट इज दिस इज 900, तो विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दीज numbers।